Gurudev. Jai Gurudev. I understand many of us are in silence. Good evening to everybody. We, the doctors of Shri Shri Wellbeing here, I would like to take a minute to introduce the esteemed doctors present among us. We have Dr. Padmalochan ji, Dr. Ashwin, Dr. Mithali, Dr. Sharika, Dr. Diya, Dr. Ankita, Dr. Sia, Dr. Arundhati, and myself, Dr. Onni Nilanjan. So we are the Nadi Pariksha Vaidyas from our Shri Shri Wellbeing. They are all familiar faces and I would say superstars of Ayurveda here in our Bangalore ashram. Let's give them a big round of applause. So we are thrilled and really excited to share with you something that is very special to us that is going to be launched today. It's our new health and well-being Utsa app is here to make Ayurveda healthcare even more accessible than ever. Have you heard about this? Yes? How many have heard about the Utsa app? Great. So India has always been the land of Ayurveda, where there has been an Ayurveda doctor in each and every village, attending to the personal care required for each and every household. Of course, times have changed, but that personal touch of Ayurveda is important even till date. And with the Utsa app, you can now consult our Ayurvedic doctors online, just like making a video call to a friend. And you can connect with our Ayurvedic doctors for Nadi Pariksha from the comfort of your home. And that's not all. We're also excited to introduce the Utsa Smart Ring, a cutting-edge device that tracks your vital signs, sleep, activity, while offering Ayurvedic insights. It syncs with the app, providing real-time health updates, helping your doctor guide you better. You can also book Nadi Pariksha consultations through the app and find camps that are happening near you. Isn't this great? Yes? Let's have a big round of applause for this wonderful moment. So it is very easy and simple, and for us all we have to do is take out our phones and scan the QR code and download the app. Shall we all remove our phones? Yes? We have this QR code on the screen. So let's take this first step together. Just scan the QR code, download the app, and begin your journey to holistic health. Okay. Thank you so much. And we hope to make your life through Ayurveda much, much better, taking a huge step forward towards personal health care. Jai Gurudev. जय गुरुदेव अपडेट लेकर आए हैं। हमारा नया उत्साह ऐप अब आयुर्वेदिक हेल्थ केयर को इतना आसान बना देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में आयुर्वेद और नेचुरल हीलिंग का हमेशा से एक विशेष महत्व रहा है। पुराने ज़माने में गांव-गांव में अपने वैद्य होते थे, घर जाकर लोगों को उनके हिसाब से एक ट्रीटमेंट दिया करते थे, हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से। समय तो बदल गया है, लेकिन वो अपनापन और देखभाल आज भी उतनी ही ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो शायद ज़्यादा ज़रूरी है ये थोड़ा पर्सनल टच होना। अब उत्साह ऐप की मदद से आप घर बैठे वीडियो कॉल के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से आसानी से पर्सनली 1-to-1 बात कर सकते हैं, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों। तो बस इस QR कोड को जो आएगा अभी आपकी स्क्रीन पर,
उसे स्कैन करें। डॉक्टर उन्नी के बोलने पर आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अभी फ़ोन निकालें, स्कैन करें, ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे हमसे कनेक्ट हो जाएं। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास उत्साह स्मार्ट रिंग भी है। आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट रिंग आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगी, आपके वाइटल्स, नींद, एक्टिविटी सब कुछ मॉनिटर करेगी। ये रिंग ऐप से कनेक्ट होकर आपको रियल टाइम हेल्थ अपडेट्स देती है और साथ ही आपके डॉक्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देती है। इसके अलावा आप इस ऐप से नाड़ी परीक्षा के लिए बुकिंग कर सकते हैं और अपने नज़दीकी कैंप्स का भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरु ओंकारा, गुरु गुरु जय गुरु ओंकारा, गुरु गुरु जय गुरु ओंकारा, गुरु गुरु
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः 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 हर 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 ॐ नमः शिवाय हर 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 ॐ नमः शिवाय
नंद गे आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद गयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जल्दी और sing together। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की सोने की सागर है चांदी की पाल 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 की हो यशोमती यशोमती झूलावे डोले नंदलाल जी यशोमती झूलावे डोले नंदलाल की हो यशोमती झूलावे डोले नंदलाल जी यशोमती झूलावे डोले नंदलाल की नंद घेरा नंद भयो ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की तू ही
तू क्या हाल है सबका? मस्त हो? कोई गुरुदेव चॉइस ही नहीं है यहाँ के मस्त में। यहाँ आके मस्त नहीं हुए तो कोई बात नहीं बनती। हाँ, Gurudev, as a mother or wife or any role that we play in our life where we connect and give ourselves 100%, the heart gets pulled in that direction. How do we apply Vitrishna? It becomes a struggle to pull the mind back. these are all just excuses. I've seen mothers with 3 small children engaged in work what they want to do. If you want to do, you can do it. You invoke the strength within you. You say, I can do it. I will do it. You can do it. Children needs attention. You give the necessary attention to them. And then you do what you need to do. There are people with kids. They take care of the office. They go to office. They take care of the home. They do all that. You simply have to know that you can do it and energize yourself, eat well, keep timings and meditate every day. If you do these things, the Vitrishna is naturally there. And there is, on top of it, there is devotion. If you don't have any devotion at all, if you feel alone, you can't do anything. But if you are devoted and you have the faith, God is with me, you can do anything. You can move mountains. Gurudev, See, your mothers have done, your grandmothers have done. Your grandmother has done with so many kids. Not like you, 1 or 2 kids. They managed 1 dozen, maybe half a dozen children. And they managed all very complex situations, not just their home, but all the cousins, their Tauji, their Chachaji, they will all stay with them. They have to take care of everybody. Your mothers, your grandmothers have managed a compound family, joint family. You call it joint, even that is not wrong. That was the real family those days. Very compound family. Even now, look around, there are people who are managing it. Go to village and learn from them. They do so many things, you know. They draw the water from the well. They pluck the flowers. They go for shopping. They buy vegetables. They cook. They feed. They clean. They do everything. How are they able to do it? You know, you ask the maid that comes to your home, she will know how much. Learn from your maid. Your maid does more work than you. Yeah? You have to look around and see what responsibility you have is very small. And you have capacity to take more. Yeah? Gurudev, if the nature of the self is bliss, why did it decide to forget itself and experience misery in the form of this cycle of life and death, and then work hard to escape from this and realize its true nature again? Only then there is drama.
In a love story, if the boy and girl just meet and get married, the show is finished the same day. It just takes not more than 5 minutes to fall in love and get married and finish it. No. You have villain, you have other things. In the movie, they go through so much struggle and only in the end they get married. Isn't it so? Huh? Ask the Bollywood producers and actors. Why do you make so much complicated? The end game is they happily married. That's all, no? Why should you go through all that? What? The contrast is life. That is why life is called a game. In a football game, if you say the purpose of the game is to put the ball in the goal, then everybody can go and keep it there. Why they play so long and fight, fall on each other and do this whole exercise? What do you say? Why someone has to bat and bowl and kick the ball and do all this stuff? The idea is to put the ball in the goal and keep it there. Your question is like that. And you find your own answer for it. Huh? Gurudev, how will we come to know that we have attained samadhi? How to recognize or confirm? That is why you need Guru. If the master is there, teacher is there, then he leads you to the right type of samadhi, right way to samadhi. On your own you try to do from here and there and that book and this book, it doesn't work. It is simply the transform of energy. It is transmitting energy, transforming energy. हिंदी में है ना सारा, तो अंग्रेजी में पूछ रहे हैं सारा प्रश्न. हिंदी का ट्रांसलेशन है क्या? नहीं होगा. हाँ. गुरुदेव, कृपया उस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ बताएं जिसमें 1000 शिष्यों में से 999 जलकर भस्म हो गए और केवल एक शिष्य जीवित बचा जो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बना, जिसके कारण पतंजलि योग सूत्र हम तक पहुंचे. ये पहेली है. पहेलियों को खोल के नहीं बताते, अपने आप खोलते जाओ. फिर भी हम कुछ आपको एक हिंट्स दे सकते हैं. हिंट ये है, जो आधा ज्ञान पाता है वो ब्रह्म राक्षस होता है. तो आधा ज्ञान पाकर के अपने आप को ज्ञानी जो समझता है वो आदमी ब्रह्म राक्षस. जो नहीं जानता कुछ वो कुछ नहीं करता. जो जान लेते हैं वो सब भस्म हो गए, माने वो उनका अस्मिता समाप्त हो गया, वो विलीन हो गया, अनंत में एक हो गया. मगर जो बीच में कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता, वो लोगों को उपद्रव करता है, उपद्रवी बना देता है. ये बहुत ऐसे लोगों को आप देखते हैं समाज में. कच्चे घट होते हैं. कई लोग इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा मानने के लिए चल पड़ते. मैं उनको कहता हूँ, भाई जरा संभालो, अभी घट कच्चा है, इसमें पानी डालोगे ना पानी रुकेगा ना घट रहेगा, इसको पकने तो दो. मैंने कई लोगों को बोला ये बात. जो जल्दीबाजी है उनको गुरु बनने की शौक, ऊपर चढ़ने की शौक, स्वामी बनने की शौक, कुछ तो कुछ बनना, मैं भी कुछ हूँ दिखाने का शौक. हाँ, वो ज्ञान थोड़ा बहुत सीखा है, उससे कुछ तो लोगों को लाभ होने लगता है, तो वो लोग ताली बजाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं तो और चढ़ जाता है.
अस्मिता और लगती है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे रस आ गया। जिसमें रस आ जाता है आदमी उसको छोड़ता नहीं है। और मान सम्मान में, गुरु बनने में रस आ जाता है, फिर फंस गया आदमी। ऐसे लोगों को यही कहना है कि ठीक है, करो, बनो गुरु। तो हम तो चाहते हैं हर एक आदमी गुरु बने, बनना भी चाहिए और हो भी हो। गुरु बने क्या, जो और लोगों को जो तुम जानते हो वो रास्ता दिखाया, थोड़ा सिखाया, तुम आगे बढ़ रहे हो, उनको थोड़ा पीछे का रास्ता दिखाते गए, वो बने। मगर उसमें बहुत ज़्यादा रस लेने लग जाते हैं तो फिर पतन का मार्ग खुल जाता है। भ्रष्ट योगी उन्हीं को कहते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही है वो घट। अभी घट तो बना है, अभी कच्चा है, पका नहीं पूरा। तब उसमें पानी डालते हैं तो ना पानी ठहरेगी ना घट रह जाएगा। ये हालत हो रही है। परिपक्वता आना चाहिए, वो आ जाता है। परिपक्वता विनम्रता से, सहजता से और प्रेम भाव से परिपक्वता आ जाती है, और कष्ट सहन करने की शक्ति से आ जाती है। टीका टिप्पणी सहना चाहिए लोगों को, वो सहते हैं तो मजबूत हो जाते हो। फिर कोई चीज तुम्हें हिला नहीं, तुम्हारा मुस्कान को कोई छीन नहीं सकता। ऐसे तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, ठोस बनते हो। तब तुम्हें किसी पद की, प्रतिष्ठा की, अस्मिता की आवश्यकता ही नहीं है। उस पर तुम्हें रस नहीं मिलता, क्यों? तुम खुद ही रसमय लगे, अपने में मस्त हो, है ना। तो कई बार वो नहीं करते, उनके इर्द गिर्द की चेले ऐसे बना देते हैं, उनको बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं। एक तरह से वो अच्छा है, उनके लिए तपस्या है। पक्के नहीं है वो अभी, तो उनके लिए तपस्या समझ के चले तो अच्छा है। उसको अस्मिता में बदल देते हैं, वो मेरे वजह से और मेरे अस्मिता से ये सब हो रहा है, मैं भी कुछ हूं समझ लेते हैं, तो बस वो फिर सीढ़ी उतरने लग जाते हैं फिर। गुरुदेव, दृष्टा और अनुभवकर्ता एक ही हैं या अलग? सबका अनुभव कैसे अनुभव होता है? देखने से, सुनने से। देखने वालों को तो अनुभव होता है ना, तो जो अनुभव करता है वही तो दृष्टा है, वो एक ही है, पर्यायवाच है। गुरुदेव, सामाजिक अन्याय देखकर मन व्यथित होता है और उसे सुधारने का प्रयास करते समय आसक्ति हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि आसक्ति और वैराग्य में संतुलन रखते हुए सामाजिक कार्य कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अपना कर रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या? अपना ये सब कर ही रहे हैं। हमारे देखो टीचर जितने हमारे शिक्षक हैं, जितने अध्यापक हैं, सब कर ही रहे हैं, कर सकते हैं। बार बार अंदर जाना चाहिए, संवारना है इसको। हनुमान जी को भी जब बहुत लंका लांदनी थी तो कहते बार बार रघुवीर संभारे, ज्ञान रस दंड युग। माने 20 मिनट का वो ध्यान लगाते थे बैठ के पत्थर में, अंतर्मुखी होते थे, अपने भीतर से राम से जुड़ते थे, फिर वो काम करने में सक्षम हो जाते थे।
हनुमान जी का नाम, मगन ध्यान रस दंड युग। और मन को मजबूत किया उससे। फिर हनुमान जी क्या मतलब, बार बार रघुवीर समार। तो ध्यान कर करके फिर वो अपना काम करते थे। ऐसे सामाजिक काम करें मगर उसमें अलिप्त ना हो जाए। सारा अन्याय को मिटाने का तुम्हारा काम नहीं, कर ही नहीं सकते हो, वो भगवान ही कर सकता है। तो अन्याय के विरोध में खड़े होना चाहिए, मगर इस विश्वास के साथ भगवान ठीक करेंगे इसको। कुछ काम हमसे भी करा देंगे, कुछ काम हमसे भी करवा लेंगे। ऐसे भाव में शरणागत होकर के, स्थिर होकर के, आध्यात्म को साथ में लेके सेवा करेगा, वो व्यक्ति सच में जीत जाएगा, उनको सफलता भी मिल जाएगा उस काम। सिर्फ अन्याय अन्याय करके उस रोष में बैठे रहोगे, तुम्हारा दिमाग में क्रोध के सिवाय, द्वेष के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जब क्रोधित होते हो, द्वेष में भर जाते हो, कमजोर हो जाते हो भाई। हाथ पांव कांपने लगता है, बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती है, भोजन नहीं पचता है। इस तरह की परिस्थिति में तुम अन्याय के विरुद्ध लड़ोगे कैसे? खुद ही कमजोर होते जा रहे हो इससे। इसलिए ये भरोसा रखना बहुत आवश्यक है कि जो अन्याय कर रहा है तो उसको वो भुगतेगा, जैसा करनी वैसा भरनी। ये बात तो पक्की है, इस पर तुम विश्वास करोगे। और विश्वास करके चुप हाथ बांध के बैठ जाना नहीं, विश्वास के साथ काम करो, तब सिद्धि होती है। गुरुदेव, यदि कोई नींद में यम और नियम जैसे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दे तो क्या इसे भी उनका पालन न करने के समान माना जाएगा? कृपया इस पर प्रकाश डालें। इससे भी क्या? गुरुदेव, यदि कोई नींद में यम और नियम नींद में हाँ, जैसे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दे तो क्या इसे भी उनका पालन न करने के समान माना जाएगा? कृपया इस पर प्रकाश डालें। नहीं, नींद में जो कुछ घटित होता है उसके बारे में तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तुम्हारे जो सुप्त चेतना से जो पुराने छाप पड़ी है वो निकल रही है, वो संस्कार निकल रहा है। तो ये सब अनुभव होता, उसमें तुम भयभीत ना हो। आत्मग्लानि में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा ये सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो भी है अस्तेय, ये सब तुम पालन करने का संकल्प लेके चलते हो। क्यों? तुमको पता है इससे तुम्हें सुख मिलेगा, इससे विरोध में जाएंगे तो हमको दुख मिलेगा। बस इतना समझ लिया तो अपने आप ये होने लगता है। अब रोज रोज तुम्हें बैठ के नहीं कहते मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, ये तो कोई सोचते भी नहीं है। सोचते हो क्या? मैं किसी का हिंसा नहीं कर, तुम्हारे स्वभावगत ऐसा आ गया कि तुम हिंसा कर ही नहीं सकते हो। अभी कभी कभी ऐसा भाव मन में उठ जाता है तो पतंजलि उसके लिए भी बोलते हैं विपक्ष भादने प्रतिपक्ष भावना। ऐसा मन में आता है तो उसका प्रतिपक्ष सोचो। प्रतिपक्ष क्या है? माने अरे भाई मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, मिलने वाला है। और हमने अनुभव करके भी देख लिया, पहले बहुत बार ऐसे अनुभव हुआ, इससे कोई सुख नहीं मिला। दुख ना मिले तो भी सुख तो नहीं मिलता है इससे। ये समझ आ जाए, समझ उपज जाए हमारे भीतर तो तुम सिद्ध होगे। इसलिए जिस हद तक इन सब की पालना हम करने लगते हैं
उतना ही हमें समाधि में गहरी अनुभूति होने लगती, समाधि की गहरी अनुभूति होने लगे। इतना ही है। अब थके मारे तुम बैठे हो ध्यान में, तो ध्यान कहाँ, वो सारी शक्ति उसी में चला जाता है, तुम्हारा थकान दूर करने में चला जाता है। ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते तो थक जाते व्यक्ति, तो उस थकान में ध्यान की शक्ति काफी उसी में चला जाएगा। फिर ध्यान तो लगता नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ध्यान का अनुभूति और गहराई से होने लगता है। और ये सब किसी वासना को दबाने से नहीं होता, सहजता में आने से होते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, सहजता में धारणा रखनी चाहिए, जान लेना चाहिए। अहिंसा को हमने बहुत खींच लिया, लंबा खींच लिया, ये भी गलत है। माने अहिंसा माने क्या, हम सांस लेने से कीड़े मर जाते हैं, बोलने से कीड़े मर जाएंगे, चलने से ये हो जाएगा, तो इस तरह से संभव नहीं होगा। समझ रहे ना? हमारे शरीर में पता है कितने जंतु हैं, वो नए पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये सब हिंसा के नाम से नहीं है। हिंसा मन में होता है, मन में क्रोध के साथ, द्वेष हो, क्रोध हो, तभी हिंसा होती है। अहिंसा माने क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, मन शांत है, प्रसन्न है, स्थिति। ऐसे ही ब्रह्मचर्य माने भी यही है, विशालता में मन को रखे। छोटे छोटे जो इच्छाओं में पकड़ के उसमें जकड़ के रह जाना, किसी अंग के प्रति, शरीर के किसी एक अंग के प्रति अति कातुरता, अति कामुकता हो, वो काम वासना है। और सहज जो है, सहज रूप से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा धर्म है, वो निभाना है। पति पत्नी के साथ है तो शारीरिक संबंध धर्म है, उसको निभाते रहे। पर मन में हमेशा उसके बारे में सोचते रहे, उसका कोई अंत नहीं है। आज कोई दूसरा कोई और आकर्षक लगते हैं, अच्छा ये कोई नहीं होते तो फिर बच्चे आकर्षक लगते हैं, अच्छा उसके ऊपर भी फिर जानवरों से काम वासना, काम संबंध करने लगते हैं लोग। ये सब विकृत काम वासना का ही पहचान है। मैंने अपने ना काम वासना को समझा, ना उस पर नियंत्रण किया, खुला छोड़ दी, तो इस तरह से बहने लगेगा। फिर वो उससे तुम्हें ना सुख मिलता है, ना स्वास्थ्यकर है, दुखी दुखी रहते हैं ऐसे लोग। और जो काम वासना में इतने पीड़ित जो व्यक्ति है, उसमें कोई आकर्षण रहता ही नहीं है, लोग उससे दूर भागते हैं, है कि नहीं? बताओ, हाँ बताओ भाई, कोई पुरुष या महिला बहुत अधिक काम वासना में पड़ी है, उसमें ना कोई ब्रह्मचर्य है, ना कोई संयम है, ऐसे व्यक्ति आकर्षक लगते हैं क्या? अरे आप, हाँ, नहीं लगते हैं। हाँ। गुरुदेव, विपर्य और इंट्यूशन के बीच अंतर कैसे समझा जाए? विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है।
बुद्धि से, सोचने से, समझने से, इंद्रिय ज्ञान से ये होता है। जो प्रज्ञा है, अंतस प्रज्ञा है या इंट्यूशन है, वो बुद्धि के अतीत का ज्ञान है। वो अंतर स्फुरणा है, चेतना से निकलती है। वो इसलिए उसको इंट्यूशन बोलते हैं। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत हो गया तो वो इंट्यूशन ही नहीं है। दामाद माने बेटी का पति, बेटी का पति माने दामाद। ऐसे इंट्यूशन माने सही, और सही ना हो तो वह इंट्यूशन ही नहीं। और वो मन के, बुद्धि के परे का ज्ञान है। बुद्धि के परे से वो निकलता है। गुरुदेव, कल आपने बताया कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए जब उसका पति अपनी माँ का पक्ष लेता है। क्या इसका मतलब यह है कि लड़की को चुप रहना चाहिए, भले ही उसका पति या सास उस पर गलत आरोप लगाए या उसके माता पिता का अपमान करे? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई तो पहले देखो, और सही ना हो तो वह इंट्यूशन ही नहीं। और वो मन के, बुद्धि के परे का ज्ञान है। बुद्धि के परे से वो निकलता है। गुरुदेव, कल आपने बताया कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए जब उसका पति अपनी माँ का पक्ष लेता है। क्या इसका मतलब यह है कि लड़की को चुप रहना चाहिए, भले ही उसका पति या सास उस पर गलत आरोप लगाए या उसके माता पिता का अपमान करे? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई तो पहले देखो कहां से शुरू हुआ। बिना कारण कोई किसी के ऊपर आरोप लगाए, वो मूर्खता है। अच्छा, वो मूर्खता कर रहे हैं तो तुम भी मूर्खता करोगे? मूर्खता का ठक्कर मूर्खता से लोगे क्या? तब तो तू मैं में लगड़े झगड़े में पड़ जाओगे। अरे तुम्हारे पास भी तो युक्ति है, युक्ति से जीतो। ऐसा लगता है तुम्हारी सासू माँ बड़ी मूर्ख है, बुद्धिहीन है। तुम जरा बुद्धिमत्ता दिखाओ अपनी। वो ठग रही है तो तुम भी ठगो उसको। कैसे ठगो? उनको बोला, माँ आपके जैसे कोई नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं। उनका पाँव पकड़ो, पाँव दबाओ, सेवा करो। मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? 4 बार पूछो दिन में, देखो क्या हो जाएगी उसको। वैसे तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अरे कैसी बहू आई हमारी घर का। मैं चाहने से पहले मेरा सब काम कर दिया था। बोलो माँ मैं आपका कपड़ा मैं आयरन कर लेती हूँ, आप मत कष्ट लीजिए, आप बैठिए ना, आप बताइए क्या है मुझे करना। ऐसे तुमने कहा है उनको? मन में तुमको कष्ट भी हो रहा होगा, थोड़ी दिन नाटक तो करके देखो। दिल से भले ना करो। अरे नाटक में पात्र तो ले करते हैं ना, सब तरह के पात्र। ऐसे तुम पात्र करो, नाटक करो, युक्ति लगाओ। वो बोलते तुम गलत है, हम आप ही सिखाओ मेरे को। मैंने कुछ सीखा नहीं, बोलो मुझे मौका ही नहीं मिला। आप सिखाए, आप जो बोले मैं वही करूं। बोलो अमावस्या को बोले ये पूर्णिमा से, हाँ माँ बिल्कुल, चांद कितना चमक रहा है बाहर। अरे युक्ति तो लगाओ ना। उसको तो इनसिक्योरिटी है तुम्हारी सास का, कहीं हमारे
हमारे बेटे को ये ऐसे मोहित करके कि अलग ना ले जाए, मैं क्या करूं बुढ़ापन में, ऐसे उसके दिल धड़क धक धक कर रही होगी। उसको भरोसा तो दो। मैं को भूलो तुम्हें क्या बोलेंगे, गधे बोलेंगे हम, कोई और कपड़ा है धोने के लिए, मैं सब धो लेती। तो गधी हो, गधी तो ढो की जाते हैं ना आजकल, वो सब नहीं, वॉशिंग मशीन होता है हर घर में। जो भी वो कहे उसको सुन लो ना, क्या बड़ी बात है। युक्ति लगाओ कहीं पर भी, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, दफ्तर में ऐसा हो तो तुम्हारा बॉस ऐसे मूर्खता करें, क्या करें, दुनिया में बहुत मूर्ख लोग तो है ही, सबको तुम मिटा तो नहीं पाओगे, और तुम्हारे जैसे बुद्धिमान तुमको दिखेंगे ही नहीं। सबसे मुश्किल बात है, तुम्हारे जैसे नेक व्यक्ति, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, तुम्हारे जैसे प्रामाणिक व्यक्ति कोई मिलता ही नहीं, कहीं नहीं मिलता। तुम बड़े विशेष हो, तू नमूने हो, ऐसे ही समझो, लाखों में एक तुम ऐसे समझो, मगर वो दिखाने के लायक नहीं है, सबको कहने की लायक नहीं है। ओ ये समझ के चलो, बोलो ये ठीक है, अभी नाटक करते हैं हम। अरे प्रेम से तुम जीत सकते हो भाई, युक्ति से तुम अपना काम कर सकते हो। बच्चे सब युक्ति से काम करवा लेते हैं, करवा लेते हैं कि नहीं? बच्चों को कभी स्कूल का ट्रिप जाना हो, अम्मा ने ना बोल दिया, पापा के पास जाके बताया, पापा मुझे तो जाने का मन नहीं है, मगर मेरी सारी सहेलियां दुखी हो रही है, इस बार चला जाऊं क्या? आप हाँ बोलोगे तो जाऊं। तब पापा का ऐसा पिघल जाता, रे हमारी जो पुत्री जो है ना, बेटी है, इतनी बढ़िया, इतना अच्छा है, उसको नहीं नहीं तू जाओ तो जाओ। ट्रिप में भेज किया है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोग यहाँ देखो, ईमानदारी से बताओ, अपने बच्चों ने कितने बार आपको ठगा? अपने बच्चों के बातों में आप आ गई, ठगा नहीं बोलूंगा, बच्चों के बातों में कितने लोग आ गए यहाँ, हाथ उठाइए देखते हैं। वो जो बोलते हैं उसको कर लेते हैं, आप बच्चों के पीछे आ जाते हैं। तो बचपन में तुमने जो युक्ति लगाई है, अपना काम चलाया, अपना काम करवाया अपना माँ बाप से, अब शादी के बाद अपना ससुर, सास ससुर, पति, इनके साथ भी ऐसी युक्ति लगाओ तो ऐसा देखो सब काम बन जाता है तेरा। युक्ति में ना हो, तुमने सारा युक्ति लगाया, थक गए, तो भक्ति में आओ, ईश्वर से भगवान सबको सन्मति दे भगवान। वो गीत गाने में दिल से आप पुकार उठती है, भगवान इनको सन्मति दो, उसमें अपना भी जोड़ दो, सबको सन्मति देगा। और मेरे सिवा, ताकि मेरे में आज मुझ में है ऐसे मत समझना, मुझे भी थोड़ा दे दो, उनको तो ज्यादा देना, मुझे भी थोड़ा दे दो। इतने सन्मति मांगो, भक्ति से हो जाएगा, युक्ति से हो जाएगा तो भक्ति से हो जाएगा। जीवन में इतना तो करो, ठीक है? आज ध्यान करेंगे, चलो थोड़ी देर बैठ। देखिए, इसीलिए योग को भी कुशलता के साथ जोड़ा गया। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता से, युक्ति से तुम जो भी काम करते हो वही योग है, और योग का फल ही यही है, योग का फल ही यही है, तुम युक्ति से हर चीज कर पाओ और करने लगो। समझ रहे हो ना? बहुत सी ऐसी